بخاری پڑھ رہا ہوں. سنی ہوتا ہی وہ ہے جو یہ نہ کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا. چاہے بخاری پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھا تو نے بخاری سے؟ اور پھر کہتا ہے کہ جی بغیر عشق نبی کے جو بخاری پڑھتے ہیں ان کو بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی. تو کس کو سمجھا رہا ہے؟ اس حجت الاسلام کو، حضور سیدی و مرشدی سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کو؟ جب تو اپنی اوقات دیکھ، جب تجھے شیخ و پورا سے استنجا کے احجار کی طرح تجھے ناسبیت کے دوسرے مرکز میں لڑکایا جا رہا تھا، اس وقت حجت الاسلام سید عرفان شاہ مشہدی اس وقت سے بلکہ اس سے بھی پہلے دین کی خدمات کر رہے تھے. آستان علی بکی شریف نام ہے، صدیوں سے ان کی خدمات ہیں. سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کم و بیش 50 سالوں سے وہ اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے عرب و عجم کے اندر سکہ منوایا ہے. یہ سنیوں کا شہنشاہ ہے. اس کو تو بخاری سمجھائے گا، تو پڑھائے گا انہیں بخاری. اور تو تیری اوقات کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کتنی بار تم نے نظامیہ کے اندر کوشش کی ہے در حدیث میں جانے کی کہ جی مجھے جو ہے شیخ الحدیث رکھ لیا جائے، کسی کتاب کوئی سیاستہ میں سے کسی کتاب پڑھانے کا موقع مل جائے. کوئی استاد آگے پیچھے ہوتا نہیں تھا، تو پہلے تیار ہوتا تھا. اور یہ تیری صرف خواہش ہی رہی، پوری تو نہیں ہو سکی. تو اب مقابلہ کرے گا، بخاری پڑھنا تو سکھائے گا. کیا پڑھا تم نے بخاری سے؟ بات کیا کی ہے تم نے؟ کون سی حدیث پڑھی ہے بخاری سے؟ یاوا گوئیاں، ہاں جی، گوبر افشانی کے علاوہ تم نے اور کیا ہے؟ اس طرح نام لیتے ہیں عالم دین کا اور پھر سید کا نام جس طرح تو لے رہا تھا. قرآن نہیں آتا. قرآن نے نہیں کہا کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. ولا تنابزوا بالالقاب سورہ حجرات نہیں پڑھی. اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا بھی خیال نہیں. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کس طرح کے دو الفاظ استعمال کر رہا تھا؟ تجھے پتا ہے؟ فتاوی رضویہ کی باتیں کرتا سناؤں. آپ فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ، الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر. اشراف اور علماء کی تحقیر کرنا کفر ہے. ومن قال لعالم وهو علم او لعلوی علوی قاصدا به الاستخفاف کفر. آپ نے فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر کہ جو عالم کو علم کہے، علوی کو علیوی کہے، تحقیر کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے کفر کیا. اب تو بتا کس طرح کے الفاظ تو استعمال کر رہا تھا؟ ایران شاہ سید ہو، متسید ہو، پیر ہو، پیڑ ہو، الفاظ کا چناؤ تو کم از کم اچھا کرتا. تو عالم ہے، مداریوں جیسا ماحول بنا کے بیٹھا ہے اور پھر باتیں کر رہا ہے حجت الاسلام کے خلاف. کیا تم نے بات کیا کی ہے؟ وہی حدیث مبارکہ جو سید عرفان شاہ مشہدی مدنی اللہ نے بیان کی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میں اور علی کا نور موجود تھا. تو نے کہا جی علی کی بشریت یہاں سے ختم ہو رہی ہے. بشریت والی بات کس نے کی ہے؟ بشریت کا انکار ہو رہا ہے. من انکر بشریت النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقد کفر. یہ تو عبادتیں پڑھ رہا ہے. تجھے کچھ عقل ہے؟ بشریت کا انکار کس نے کیا ہے؟ نور کہنے سے بشریت کا انکار ہوتا ہے؟ تو کیا جواب دے گا دوسرے مذہب والوں کو؟ جب تو حدیث نور پڑھتا ہے یہی سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ جی نور اور بشریت یہ متضاد چیزیں نہیں ہیں کہ نور ہے تو بشریت نہیں ہے، بشریت ہے تو نور نہیں ہے. ایسی کوئی بات ہے؟ اور پھر شاہ صاحب قبلہ نے ذرا سمجھایا بھی ہے ایک کلپ کے اندر کہ جی جب بات کی جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عالم ارواح میں حضور کے ساتھ تھے، تو اس وقت تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا. بخار ہمیں کہتے ہو، ہمیں بخار نہیں چڑھتا، بخاری سے ہمیں بخار نہیں ہوتا. تمہیں آل نبی کا ذکر سن کے بخار چڑھ جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جو ہے وہ قطعی ہے اور اس کا انکار کرنے والا وہ اہل سنت سے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب قبلہ نے
कब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत की मुखालफत की है? और रही ये बात जो कतियत वाली, तो ये तू कहां से कह रहा है? मवाकिफ और शरा मवाकिफ की बात करना चाह रहा था, नाम लेना आता है, लोगों को फरेब धोखे में डाल रहा था। क्या बात की है तूने मवाकिफ से, शरा मवाकिफ से? आ सुनाऊं मैं तुझे कि कतईयत क्या होती है और ज़नियत क्या है। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकमील ईमान के अंदर लिखा, सुबूतुल इमामत अगरचे कतई अस्त लेकिन अजीजा कताब अफजलियत लाजिम न आयत, कि इमामत का सबूत अगरचे कतई है लेकिन इससे अफजलियत का कतई होना लाजिम नहीं आता। ये शेख मुहक्किक है, तेरे नजदीक वो सुन्नी नहीं हो सकता, वो राफजी हो सकता है, फलां हो सकता है, फलां हो सकता है। लगा फतवा शेख मुहक्किक पर, जो मुहक्किक अलल इतलाक हैं। वो कहते हैं कि कतईयत अफजलियत कतई नहीं है, इमामत कतई है। और मवाकिफ के अंदर, शरह मवाकिफ के अंदर इमाम जुरजानी की जो है, आपने फरमाया सुबूत इमामत व इनकार कतईयन ला युफीदुल कतअ बिल अफजलियत बल गायतुहु अज़ल्लु, कि इमामत का सबूत अगरचे कतई है लेकिन अफजलियत के कतई होने का ये फायदा नहीं देती, बल्कि ये ज़न्नियत का फायदा दे रही है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत कतई नहीं है बल्कि ज़न्नी है। ये शरह मवाकिफ के अंदर लिखा। और शरह मवाकिफ के अंदर मजीद देख, शुरू से दो आरा रही हैं सिद्दीक अकबर और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान मुफाजले की। कुछ हजरात ने सिद्दीक अकबर को फजीलत दी, कुछ ने हजरत मौला अली को। दोनों के दलाइल जिक्र करने के बाद इमाम जुरजानी लिखते हैं, वन्नुसूसुल मज़कूरतु मिन अत-तरफ़ैन बादा तारुज़ुहा ला तुफ़ीदुल क़त्अ अला मा ला यख़फ़ा अला मुनसिफ़िन। कहते हैं कि जो नुसूस मज़कूरा हैं दोनों तरफों से, तारुज़ के बाद ला तुफ़ीदुल क़त्अ, ये कतियत का फायदा नहीं देती। अला मा ला यख़फ़ा अला मुनसिफ़िन, ये बात किसी मुनसिफ मिजाज आदमी पर मख्फी नहीं है। तेरे जैसे दजल करने वाले की बात नहीं हो रही, मुनसिफ की बात हो रही है। बंदा हो मुनसिफ तो फिर वो ये कहेगा कि ये चीज कतईयत का फायदा नहीं देती। इम्मा आहादुन और ज़न्नियतुद दलालत मा कौनिहा मुतारिज़तन, जब तारुज़ आ गया या तो ये आहाद में से है या फिर ज़न्नियत दलाला है, और तू सुन्नियत से खारिज कर रहा है। अब मैं दिखाऊं किस किस ने हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजीलत दी। और याद रखना, हम जुमहूर के साथ हैं। जुमहूर का जो मजहब है, जुमहूर ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल है, तो हम उसके कायल हैं। और अब मैं तुम्हें बताऊं कौन कौन है जो हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत के कायल हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फकान असहाबु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़बल अली क़ालू जाअ खैरुल बरिया। दुर्र मंसूर में है कि जब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते तो सहाबा किराम कालू, सहाबा कहते जाअ खैरुल बरिया, खैरुल बरिया तशरीफ लाया है। खैरुल बरिया सहाबा कहते हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। क्या फतवा लगाएगा इनके ऊपर। और आगे सुन, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जरा फरमान सुन ले। आप फरमाते हैं, ये दारुक़ुतनी की हदीस है, शुअबी से वो रिवायत करते हैं कि आपने बैनमा अबू बकर जालिसुन इज़ तला अली फलम्मा रआहु क़ाल मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला आज़मिन नास मंज़िलतन व अक़रबिहिम क़राबतन व अफ़ज़लिहिम हालतन व आज़मिहिम हक़्क़न इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलयंज़ुर इला हाज़िहि तालिअ। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा जब मौला अली तशरीफ लाए, आपने फरमाया जो ये चाहता है कि लोगों में से अजीम तरीन हस्ती को देखे मकाम के लिहाज से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत के लिहाज से सबसे ज्यादा करीबी हस्ती को देखे, और हालत के लिहाज से सबसे ज्यादा अफजल हस्ती को देखे, और जो ये चाहता है हक्कानियत के लिहाज से सबसे आजम हस्ती को देखे, उसको चाहिए कि हजरत मौला अली को देख ले। अब ये सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, क्या फतवा लगाएगा तो उनके ऊपर? सुन्नी नहीं हो सकता। अब तेरे इस फैसले से तो यह साबित होता है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नियत भी माज़अल्लाह खतरे में पड़ गई। आगे सुन जरा, खतीब बगदादी ने कहा फअम्मल अब्बास फमात वाली इंदहु अफज़लुस सहाबा, कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह अकीदा रहा विसाल तक कि हजरत अली तमाम सहाबा से अफजल हैं। क्या फतवा लगाएगा? यह करने वाली की बात है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप 32 हिजरी के मुतवफ़ा हैं। उस दौर में ये हस्तियां मौजूद थी
जो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत के कायल थे, क्या फतवा लगाएगा? सुन्नियत से खारिज हो गए। आगे सुन जरा, इब्न हज़म उंदलिसी ने अपनी किताब के अंदर कहा, कान अम्मार इब्न यासिर वल हसन इब्न अली यफज़ुलान अली इब्न अबी तालिब अला अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत इमाम हसन मुज्तबा शबीह मुस्तफा रज़ियल्लाहु अन्हु व सलामुल्लाहि अलैह, आप और हजरत अम्मार बिन यासिर ये दो हस्तियां हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शेखैन पर फजीलत देते थे। क्या फतवा लगाएगा इनके ऊपर? और इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुतबा दिया जब हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। क्या खुतबा था? आपने फरमाया, या अय्युहन्नास लक़द फ़ारक़कुम हमसे रजुलन मा सबक़हुल अव्वलून व ला युदरिकुहुल आखिरून। ये मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ रहा हूं। खसाइस अली इमाम नसाई ने जो लिखी ये उसमें भी मौजूद है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी मौजूद है। आपने फरमाया, लोगों कल तुमसे वो हस्ती जुदा हुई है कि जो सारे अव्वलीन से सबकत ले जाने वाली हस्ती है, और उसके मकाम वला युदखिलुल आखिरून वला युदरिकुहुल आखिरून, और उसके मकाम को आखिरीन भी नहीं पहुंच सकते। यह हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला का खुतबा है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की उसमें मौजूद है, कुन्ना नतहद्दसु अन्ना अफज़ल अहल मदीनति अली इब्न अबी तालिब, कि हम अहले मदीना में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फजीलत वाला कहा करते थे। तो क्या लगाएगा इनके ऊपर फतवे? लगा सकता है? तेरे पास कौन सा ऐसा मेयार है कि किसी को सुन्नी बना ले, किसी को सुन्नियत से निकाल दे? क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला सुन्नी नहीं थे? तू सुन्नी है? हजरत इमाम हसन मुज्तबा सुन्नी नहीं? तेरे हिसाब से तू बड़ा सुन्नी आ गया है? हजरत अबू सईद खुदरी, हुज़ैफा बिन यमान, अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये जो हस्तियां हैं, अम्मार बिन यासिर और भी कई साहबा हैं, ये सुन्नी नहीं थे, तू सुन्नी आया है? जरा अकल के नाखुन लो, होश के नाखुन लो, सादात के खिलाफ इतना बक बक ना करो। अपनी नासबियत का इजहार जिस तरह तुम पहले करते चले आए हो, अब कुछ जरा होश करो। हजरत सैयद इरफान शाह साहब मशहदी वो हस्ती हैं जिन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का भी दिफा किया है और हुजूर की आल का भी कर रहे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात करता है। आला हजरत ने क्या फरमाया कि किसी भी सैयद की जो ताजीम है ये उसके आमाल के सबब नहीं बल्कि कराबत रसूल के सबब है। जब तक कोई सैयद कुफ्र तक, शिरक तक ना पहुंचे उस वक्त तक उसकी ताजीम लाजिम है। तो कौन सी ताजीम कर रहा है? यही मरकज नासबियत आज से कुछ अरसा पहले तुम्हारे एक बड़े गुरु घंटाल ने यह कहा था कि 90% सैयद जो है वो गुमराह हैं, लिहाजा उनकी महफिल में ना बैठा जाए कि वो गुमराह कर देंगे। और फिर असर इस तरह होता आया कि उनके शागिर्द जो है वो 2 कदम आगे बढ़ के बात करते हैं। इसी तुम्हारे जामिया के अंदर मसनद तदरीस में बैठ के एक बदबख्त ने ये अल्फाज कहे कि 100% सादात जो है वो गुमराह हैं, उनके साथ उठना बैठना खत्म कर देना चाहिए वरना बंदे गुमराह हो जाएंगे। लाख लानत है तेरे ऊपर और तेरी इस सोच के ऊपर। आले नबी औलाद अली जिनको हुजूर ने कुरान का साथी बनाया वो गुमराह हैं, 100% सारे गुमराह हैं। तो तू हिदायत पर है, मुंह देखा है अपना? कहां से उठ के आ गए और बात करते हैं उस हस्ती की कि जिन हस्तियों को नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जतों से नवाजा है। फरमाया कुरान और मेरी आल ये दोनों इकट्ठे हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे और ये इकट्ठे रहेंगे। जो कुरान के साथी हैं, जिनकी निस्बत जो है बायसे निजात है, उन हस्तियों को तो गुमराह कहता है।